मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया, तो इसी बात का अब ये जो इनका तो रोटी ही मानहानि है, का काम ही मानहानि है, तो इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक मतलब बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। পাকিস্তান সফর প্রসঙ্গ স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিরুদ্ধে পাল্টা তোপ দাগলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সাংসদ গৌরব গগৈ। কেন 10 সেপ্টেম্বরের জন্য অপেক্ষা করবেন? মুখ্যমন্ত্রী কি ওই দিন বলিউড সিনেমা রিলিজ করবেন? रोटी ही मानहानि है, का काम ही मानहानि है, तो इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक मतलब बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। হিমন্তের লাগাতার ব্যক্তিগত আক্রমণ নিয়ে বড় মন্তব্য করে তীর পাল্টা ঘুরিয়ে দিয়ে কেন অপমানের মামলা ঠুকবেন না স্পষ্ট করলেন গৌরব গগৈ। ওদের রন্ধ্রে অসম্মান, একটি মামলা দিলে আরো দুটি মামলা করে বসবে, ওরা কর্নেলেরও অসম্মান করছেন উল্লেখ করে বিজেপি ও হিমন্তকে তরজা ঠুকলেন লোকসভার ডেপুটি লিডার গৌরব গগৈ। जिस दल का राजनीति ही मानहानि है, तो उस पर कितने मानहानि केस लगाओगे? उनका पूरा दल ही मानहानि पर निर्भर है, उनका पूरा कार्य ही मानहानि पर निर्भर है। वो अपने जो राजनीतिक जो उनके अस्त्र हैं मानहानि, वो तो उनका मूल मंत्र है कि कैसे किसी का छवि बदनाम करना। पहलगाम को लेकर भी उनके दल के नेता किस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हरियाणा में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया विधवाओं के प्रति, मध्य प्रदेश में भाजपा के एक सांसद ने यूनिफॉर्म को पहने हुए एक जाबाज हमारी कर्नल का अपमान किया। मानहानि तो उनके रग रग में है। হিমন্ত গৌরব রাজনৈতিক তরজা ঘিরে রাজ্যের পর এবার জাতীয় রাজনীতিতেও উত্তাপ ছড়িয়েছে। আজ দিল্লিতে দলীয় কার্যালয় থেকে পত্নীর কাজের সূত্রে 2013 সালে নিজেও পাকিস্তানে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নিলেন গৌরব গগৈ। পূর্বের এক আন্তর্জাতিক ভ্রমণের ব্যাখ্যা দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এটা শেষ নয়, মাত্র শুরু। সিট গঠন করা হয়েছে, 10 সেপ্টেম্বরের জনতার সামনে আনা হবে সকল তথ্য বললেন মুখ্যমন্ত্রী। পাকিস্তানের সঙ্গে গৌরব গগৈর ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ রয়েছে পোস্টে উল্লেখ করলেন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। और हमारा उल्टा सवाल है कि अगर उनके आरोप के अनुसार कुछ हमने गलत किया, मेरी धर्मपत्नी या मैंने गैर कानूनी किया, तो पिछले 11-12 साल से किसकी सरकार है? पिछले 11-12 साल से केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? और आपको भी पता है कि कोई सीमा के उस पार जाता है तो कितनी जांच होती है, सीमा के कोई इस पार आता है तो कितनी जांच होती है। और मैं तो विपक्षी दल का नेता हूं। আজ দিল্লিতে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উত্থাপিত নানা অভিযোগের জবাবদিহি করে মুখ্যমন্ত্রীর লাগাতার ব্যক্তিগত আক্রমণ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তনয় তথা লোকসভার ডেপুটি লিডার তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ। পত্নী আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার সুবাদে পাকিস্তান গিয়েছিলেন 2011 সালে, আর তারপর সংস্থার কাজে স্ত্রী পাকিস্তান গেলে তিনি অর্থাৎ গৌরব গগৈও 2013 সালে পাকিস্তান সফর করার কথা স্বীকার করে নিয়ে সফরের যাবতীয় প্রেক্ষাপট খোলাসা করে মুখ্যমন্ত্রীর লাগাতার ব্যক্তিগত আক্রমণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এদের রন্ধ্রে অসম্মান রয়েছে, অসম্মান করা ওদের কাছে জল ভাত, একটি অসম্মানের মামলা করলে ওরা আরো দুটি মামলা করে বসবে, ওদের বিরুদ্ধে মামলা আর কত করব, তাই মামলা করেননি বলে মন্তব্য করেন গৌরব গগৈ। তিনি আরো বলেন, ওদের মানসিকতায় মানহানি, ওরা দেশের গর্বিত কর্নেলকেও ছাড়েনি, কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকেও তারা অপমান করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন গৌরব গগৈ। বিজেপির কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সমালোচনা করেছেন তিনি। এদিকে সাংসদ গৌরব গগৈ সংবাদ সম্মেলন করার কয়েক মিনিটের মধ্যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লম্বা একটি পোস্ট করে পাল্টা তোপ এবং হুঁশিয়ারি সূচক মন্তব্য লিখেছেন। এতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, অবশেষে গৌরব গগৈ পাকিস্তানে যাওয়ার কথা স্বীকার করার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেন, এটাই শেষ নয়, মাত্র শুরু হলো। পাকিস্তানের সঙ্গে গৌরব গগৈর ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক অর্থাৎ প্রমাণ রয়েছে বলে আরো একবার দাবি করেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আমাদের হাতে সাংসদ গৌরব গগৈর সেই সংবাদ সম্মেলনে করা মন্তব্যের আংশিক রয়েছে, আমরা শুনবো তিনি ঠিক কি মন্তব্য করেছেন এই বিষয় নিয়ে, এবং মুখ্যমন্ত্রীর সেই তাৎক্ষণিক করা পোস্ট রয়েছে, আমরা দুটোই দেখবো এবং শুনবো।
आप पर, आपकी पत्नी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। राज्य में सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी का है, उस पर वो जांच नहीं कराते, आप पर लगातार हमले करते हैं। तो क्या आप मानहानि का दावा करेंगे उनके खिलाफ? देखिए, जिस दल का राजनीति ही मानहानि है तो उस पर कितने मानहानि केस लगाओगे? उनका पूरा दल ही मानहानि पर निर्भर है, उनका पूरा कार्य ही मानहानि पर निर्भर है। तो आज एक लगाऊंगा, कल दो और मानहानि के बातें कहेंगे, तो ये कर सकते हैं। पर उनका वो अपने जो राजनीतिक जो उनके अस्त्र हैं मानहानि, वो तो उनका मूल मंत्र है कि कैसे किसी का छवि बदनाम करना। आप देख रहे हैं कि आज पहलगाम को लेकर भी उनके दल के नेता किस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया विधवाओं के प्रति। मध्य प्रदेश में भाजपा के एक सांसद ने यूनिफॉर्म को पहने हुए एक जाबाज हमारी कर्नल का अपमान किया। मानहानि तो उनके रग रग में है। तो आपने वो भी देखा कि जब उनको वाजिब लगा तो उन्होंने हिमांशी नारवाल जी का क्रिएटिव यूज किया, और जब हिमांशी नारवाल जी ने सद्भावना की बात की तो वही आईटी सेल उनके खिलाफ हो गया। उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री तक को नहीं छोड़ा, उनके परिवार को नहीं छोड़ा। जहां तक इस बात जो विभिन्न आरोप आते हैं, वो बात क्योंकि विभिन्न समय से आ रही है, वो बात हमारे प्रदेश में भी बहुत बातें आ चुकी है। तो कुछ स्पष्टीकरण भी, ताकि देश के हमारे प्रदेश के लोग भ्रमित ना हो, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 14-15 साल पहले, आज से लगभग 14-15 साल पहले मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, वो एक साल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दक्षिण आसिया में काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर, वो एक साल उस समय आज से 14-15 साल 11 में हैं, तब वो एक साल वहाँ पे थी और दक्षिण आसिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर एक साल वो पाकिस्तान में रही, और फिर वो 12-13 में इंडिया में आई और तब से वो काम करी, और फिर उन्होंने 15 में एक नई नौकरी ले ली। तो अगर उन्होंने या मैंने, जब वे उस संस्था में थे, तो मैं भी आज से 11 साल पहले, 12 साल पहले, हाँ मुझे भी याद नहीं अभी ढंग से, 2013 की बात, मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया, तो इसी बात का, अब ये जो इनका तो रोटी ही मानहानि है, का काम ही मानहानि है, तो इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक मतलब बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। असम के लोगों को ये सब पता है। और हमारा उल्टा सवाल है कि अगर उनके आरोप के अनुसार कुछ हमने गलत किया, मेरी धर्मपत्नी या मैंने गैरकानूनी किया, तो पिछले 11-12 साल से किसकी सरकार है? पिछले 11-12 साल से केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? और आपको भी पता है कि कोई सीमा के उस पार जाता है तो कितनी जांच होती है, सीमा के कोई इस पार आता है तो कितनी जांच होती है। और मैं तो विपक्षी दल का नेता हूं, सदन में एकदम बेबाक बातें रखता हूं, तो मेरा जो भी बायोडाटा सीवी सबके पास है। तो पिछले 11-12 साल में ये सरकार क्या कर रही है? तो एक साल है चुनाव के लिए, चुनावी मंशा से, और जैसे कि मैंने दोबारा कहा कि कहीं ना कहीं हमारे दल के नेतृत्व में कुछ आशंकाएं आए, वही उनका मंसूबा था, जो पूरी तरीके से आज हमारे दल के नेतृत्व ने उसको ध्वस्त कर दिया।